Hello everyone, we are studying class 6 science book, that is Curiosity, and we are currently studying chapter number 2, that is Diversity in the Living World. And in this part 2 of chapter 2, we are covering from how to group animals. And in my part 1 of chapter 2, I have already covered the parts before this. So let us start with how to group animals. So just previously we have studied how there are a wide variety of plants, and based on the features of the plants we group them. So similarly, there is a wide variety of animals, and these animals also have different features, and based on these features we will group the animals. So let us start. Just like plants, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What features can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. What it is saying is just like animals, just like plants, animals also differ from one another. एनिमल्स जो हैं जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, और इनको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और उनका यूज़ करके हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं. So now moving on to activity 2.9, let us find out. So you have recorded the movement of few animals in table 2.2. You may have also observed how other animals move from place to place. Let us now think about the types of movements in the animals. A number of animals are shown in this figure 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement? So in the previous activity, हमने क्या किया था? What we have done, that we have observed various animals and how do they move. Movements, उनके movements को हमने देखा. They can walk or jump or run. If they are flying in the sky, they have wings to fly. If they are in water, they swim, and so on, right? So these are the movements, and different animals have different body parts that help them in the movement. For example, if you want to walk or jump or run, they have legs to do so. If they want to fly, they have wings. If they want to swim, they have fins. And then suppose there is a snake, so it will crawl. So it will crawl using its body, right? So in this poster, in this figure, you can see a wide variety of animals. Like this is a fish, it has fins over here and uses it to swim. Then this is a butterfly, it has a beautiful feather and a beautiful wing and it uses it to fly. Then it has got a cow. Here is a cow. Cow has 4 legs, right? And uses it to walk or run. Here is an ant, 6 legs, and it uses it for walking and running. Here are 2 like earthworm and caterpillar. So they here you can see it has got body, but here you can see it has multiple legs. बहुत सारे legs हैं इसमें. And based on this, ये walk कर रही है या run कर रही है. Here is a rabbit. Rabbit के पास 2 ऊपर और 2 नीचे है ना, पैर हैं जिसके बेसिस जिसका यूज करके ये मूव करती है. Similarly, there are birds and they have got wings to fly, and they also have got legs, to walk. And then there is this tortoise, then frog have got legs, and then there is a snake which uses its body to crawl. So list these animals in table 2.5 and note the ways in which these animals move and name the body parts used for the movement. तो ये animals कैसे move कर रहे हैं और कौन से body parts का use कर रहे हैं इस movement को करने के लिए, that you have to note down.
So in table 2.5, first is ant. What is ant? Ant is an insect. So it has got legs, and what kind of movement it does? It walks, or you can say run, not walk, you can say. So using the legs, it walks. Then you have got goat. Goat is an animal. So using the legs, it walks and jumps. Then pigeon. Pigeon is a bird. So it has got legs and wings. Legs are used for walking. Wings are used for flying. Then housefly is an insect. So it has got legs and wings. Similarly, fish has got fins. Fins for swimming. So these are the various animals, how they are moving and which body parts they are using for their movement. So what conclusions can you draw from this data? इस data से आप क्या conclusion draw कर सकते हैं? So different animals have different types of movements. अलग अलग animals के movements अलग अलग हैं. Animals can fly, run, crawl, walk, hop or jump, and so on. So what are these? These are types of movement, how they are moving, right? So they can fly, run, crawl, walk, hop or jump. You can also write swim. So they use different body parts for moving from one place to another. और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये different body parts का use करते हैं. They may use wings, legs, and other body parts that help them to move. Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. How can we group animals based on their movements? किस तरह से हम animals को group कर सकते हैं based on their movements, कैसे वो move कर रहे हैं. Additionally, इसके अलावा many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. तो अभी तो हमने animals की grouping की based on how they are moving and what body parts they are using to move, and इसके अलावा भी to group the animals we can use various features because different animals have different shape, उनका shape, size, structure, color, ये और इसके अलावा भी और features हैं, वो सारी अलग अलग है. जैसे एक features you have got, you see a dog, you see a cat, they have got tails, but then there could be other animals जिसमें tails नहीं है, है ना. Some animals उसमें horns होते हैं, कुछ animals में नहीं होंगे. कुछ animals जो है वो छोटे size के होते हैं, कुछ animal बड़े size के होते हैं, right? So these are various features based on which you can group animals. So like plants, grouping of animals is important for understanding their diversity. तो हमने जो पढ़ा था कि biodiversity क्या है, ये पढ़ा था, and then we have studied ये biodiversity में जो plants और animals हैं इनकी grouping हम क्यों करते हैं. grouping इसलिए करते हैं क्योंकि हम तरह तरह के जो plants और animals हैं इनके बारे में समझ सकें. Know a scientist, इसे हम बाद में पढ़ेंगे. Now coming again, 2.3, plants and animals in different surroundings. So अब तक आपने क्या देखा? We have studied how we are grouping different kinds of plants and animals based on their features. अब हम देखने जा रहे हैं कि there could be different surroundings. Surroundings का मतलब है कुछ there could be mountains, some places could be deserts, then there could be some places which are hot, some places could be cold. So ये होते हैं अलग अलग surroundings जिसमें कि अलग अलग conditions है, और इस अलग अलग surrounding जिसमें अलग अलग conditions हैं उसमें plants और animals भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. So that we are going to study. So diversity in plants and animals based on the surrounding and its diverse conditions. So you might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. You have also recorded movement of animals in table 2.5. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या इन animals का movement उनके surroundings पर dependent है? Let us consider fishes and goat. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
फिशेज एंड गोट, मछली कहाँ रहती है? फिशेज लिव इन वाटर, वो पानी में रहती है, और वो मूव करती है कैसे? स्विम करती है। स्विम करने के लिए उसके बॉडी में कौन सा पार्ट यूज होता है? फिन्स, ये फिन्स है ना। नाउ गोट, ये कहाँ रहता है? ऑन द ग्राउंड। मूवमेंट के लिए ये क्या यूज करता है? लेग्स। इट हैज गॉट 4 लेग्स, एक पीछे छिपा हुआ है। सो दे यूज legs for the movement. Now, fishes live in water. They have streamlined bodies and fins for movement. What is a streamline? You are, if you notice the shape of the fish in front, this is like stream. This is called streamline body. If you recall, how does an airplane looks like? Airplane के सामने अगर आप उसका नोज देखेंगे, सामने का पार्ट, वो कुछ ऐसा होता है ना, ये एरोप्लेन के सामने का पार्ट होता है। ये ऐसा क्यों होती है? ताकि ये आराम से हवा में मूव कर सके। सिमिलरली जो ये मछली है, ये पानी में आराम से तैर सके, इसलिए इसकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन, इसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। ठीक है। सो गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. The sizes and shapes of animals also differ from one another. तो आपने अभी एक एग्जाम्पल देखा, क्या था एग्जाम्पल? फिशेज एंड गोट्स का। फिशेज कहाँ रहती है? पानी में रहती है, और वो कैसे मूव करती है? स्विम करती है। स्विम करने के लिए बॉडी पार्ट कौन सा है? फिन्स है उसके पास। गोट्स क्या है? कहाँ रहती है? जहाँ पे घास वगैरह होती है वहाँ रहती है, उसके लेग्स होते हैं और लेग्स के सहारे वो मूव करती है। ठीक है। तो आपने देखा कैसे उनके बॉडी पार्ट्स जो है ये पानी में रहने की वजह से अलग है, और ये जमीन में रहने की वजह से इनके मूवमेंट के जो बॉडी पार्ट्स हैं दे आर डिफरेंट। आगे एक्टिविटी 2.10, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट टेबल 2.6, दिस वन। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसी तरह का एक टेबल आप ब्लैक बोर्ड पर बनाएं। List the names of plants and animals you or your classmates have observed in the regions given in the table and already know about. जो भी आपके जो रीजन्स है, इसमें आप किस तरह के जो ये रीजन्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन, फॉरेस्ट और अदर रीजन्स, इसमें अगर आपको किसी प्रकार का प्लांट्स और एनिमल्स जो यहाँ पर होते हैं उनके बारे में पता है तो उनको आप लिस्ट डाउन करो। जैसे कि डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट्स में कौन सा चीज़ फेमस है? कैमल। अगर हम प्लांट्स की बात करें, यू कुड रिमेंबर कैक्टस। माउंटेन्स में देवदार, और क्या होती है? याक। ओशन में फिश हो गई, और क्या हो गई? फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े वेल्स होते हैं। फॉरेस्ट में लायन है, टाइगर है, ठीक है, एंड एनी अदर रीजन्स। ठीक है। सो नाउ, सो देयर आर, ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर रीजन्स, अलग अलग सराउंडिंग्स है ना। डेजर्ट, माउंटेन मतलब पहाड़, ओशन जो बहुत बड़ा बड़ा समुद्र, फॉरेस्ट जंगल, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट, सो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। तो अलग अलग रीजन्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैसे अलग अलग दिखते हैं, है ना, उसमें क्या differences है, क्या similarities है. So you might observe from table 2.6, this table 2.6, that plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. अब जो कैमल है, अगर आप डेजर्ट में जिस तरह के जो आप एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं, that will be quite different from the plants and animals found in mountains. या फिर जो ओशन में जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं वैसे आपको फॉरेस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो डिफरेंट, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स। नाउ, so during a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the deserts of Rajasthan. Okay. Maya shares that she saw Devdar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees
are conical in shape and have flexible and sloping branches. Okay, so what have they seen? They are discussing about cactus in desert. They are discussing about Devdar tree in Himalayas. ठीक है, mountainous regions. Cactus in deserts. So what have they observed? This is cactus. Okay, so in the cactus these are stem. And how does the stem look like? It is green and fleshy stems, you can see, right? So why do you think it has got green fleshy stems? And also it is very thick. Okay, so why do you think cactus have thick and fleshy stems? Similarly, in Himalayas, in mountain regions, you find Devdar trees and their shapes are like this, right? So why do you think they have conical, जैसे बर्थडे पार्टी में जो हैट पहनते हैं ना, like this, आपने देखा होगा. So ये क्या है? Conical shape. देवदार प्लांट ट्रीज जो माउंटेन्स में मिलते हैं उनका शेप कोनिकल क्यों होता है? ओके, नाउ सबसे पहले हम कैक्टस के पास आते हैं. तो कैक्टस का जो स्टेम है दैट इज थिक एंड फ्लैशी. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कैक्टस कहाँ देखने को मिलता है? वी गेट टू सी कैक्टस इन डेजर्ट्स, एंड इन डेजर्ट्स आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. पानी की वहाँ पे बहुत किल्लत होती है, पानी वहाँ बहुत कम मिलता है, और जिसकी वजह से ये जो थिक और फ्लैशी स्टेम्स है कैक्टस के, इसमें पानी स्टोर होता है, एंड दैट हेल्प देम सर्वाइव इन दैट हॉट एंड वेरी हॉट डेजर्ट्स विच हैज़ गॉट लेस वाटर. तो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स जिसमें कि पानी स्टोर हो जाता है, they are able to survive in deserts. Now, देवदार trees. तो देवदार ट्रीज कहाँ देखने को मिलता है? माउंटेन्स में. और इस तरह के जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल होती है, बर्फ होता है. तो बर्फ जब इसके ऊपर जमा हो जाएगा तो ये बहुत भारी हो जाएगा. तो इसका शेप अगर कोनिकल रहेगा तो ये क्या होगा? ये टूट के स्लाइड कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना. और अगर इस तरह के पेड़ रहेंगे तो यहाँ पर जमा हो जाएगा. ठीक है, तो माउंटेनियस रीजन में स्नोफॉल होने की वजह से जो स्नो है वो पेड़ के ऊपर जमा ना हो, इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो शेप है ये कोनिकल हो गया है, ताकि इसमें जब स्नोफॉल हो तो स्नो जमा ना हो. ठीक है, तो अब आप समझ गए कि कैक्टस में थिक फ्लैशी स्टेम क्यों होता है, और देवदार ट्रीज जो कि हिमालयाज में माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं उनका शेप कोनिकल क्यों होता है. स्लोपिंग ब्रांचेस इसे हम कहते हैं. स्लोपिंग मीन्स नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से टेढ़ा. So notice that these two types of plants found in different regions are different from each other. अब एक डेजर्ट में पाया जा रहा है, एक माउंटेन्स में पाया जा रहा है, तो इनमें जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं वो कितने डिफरेंट दिख रहे हैं, है ना. तो ऐसा क्यों है? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Biodiversity मतलब different kinds of plants and animals. तो डेजर्ट में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं वो माउंटेन्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं उनसे इतना डिफरेंट क्यों है? सो लेट अस फाइंड आउट. सो देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. सेम एक्सप्लेनेशन अबाउट द कैक्टस. ठीक है, सो देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में बहुत कम पानी पाया जाता है. अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. ये जो रेगिस्तान है डेजर्ट, दिन के समय बहुत गर्म हो जाता है, रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है. ठीक है, therefore you will find plants and animals in these areas that can tolerate मतलब सह पाना, and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो अब ये जो डेजर्ट्स है वो दिन के समय बहुत गर्म हो जा रहा है और रात के समय बहुत ठंडा हो जा रहा है. तो यहाँ पर उस प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स जी पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, दोनों हॉट कंडीशंस एंड कोल्ड कंडीशंस दोनों को झेल सकते हैं. ठीक है, टॉलरेट कर सकते हैं. द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर.
and help them tolerate the hot conditions in these places. तो कैक्टस में जो आपको थिक फ्लैशी स्टेम्स मिला, उसका काम क्या था कि वो पानी को स्टोर करेगा। एंड डेजर्ट्स में पानी कम पाया जाता है, तो ये जो पानी को स्टोर करता है, तो इससे ये हॉट कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। नाउ द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। जो माउंटेन्स होता है वहाँ पर कोल्ड रीजन्स है, बहुत ठंड होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, उन कंडीशंस में रहने के लिए some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. अब ये जो कोनिकल शेप है, स्लोपिंग जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे बर्फ जमा होगा तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। So conical shape and sloping branches of देवदार trees enable them to do so. ठीक है, तो ये अब वही बता रहे हैं कि देवदार जो ट्रीज है वो माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है और वहाँ काफ़ी ठंड है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो वो स्नो यहाँ पर जमा ना हो पेड़ के ऊपर, वो स्लाइड कर जाए नीचे। दैट इज वाई दे हैव कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी अगेन मैं समझाती हूँ। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो अलग अलग रीजन में अलग अलग हो रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर रीजन का अपना कंडीशंस हैं। कुछ बहुत ही हॉट है, कहीं पे पानी बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, कुछ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि बहुत प्रकार के कंडीशंस हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्स कंडीशंस। एंड बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी अलग अलग रीजन में अलग अलग है। सो हमने अभी क्या क्या एग्जाम्पल्स देखे? हमने एग्जाम्पल्स देखा फिश एंड गोट का। ठीक है, दूसरा हमने देखा कैक्टस एंड देवदार ट्रीज। आगे अब हम तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये आपके हॉट डेजर्ट से है। ठीक है, हॉट डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में, और ये कैमल है हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान का। अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पास। सो अब वहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है ना, कोल्ड कंडीशन वहाँ है, कोल्ड डेजर्ट, और ये कैमल वहाँ से है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम? तो इन दोनों कैमल को देखकर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है देखने में? व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स? तो अब तक आपने ये चीज़ समझ लिया होगा कि जहाँ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डाइवर्स कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ जो बॉडी है कैमल की या फिर कैक्टस की आपने देखा या देवदार ट्रीज का देखा, तो वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। क्यों? ताकि वो वहाँ के कंडीशंस को टॉलरेट कर सके, सर्वाइव कर सके। जैसे कि ये हॉट डेजर्ट में कैमल है और ये कोल्ड डेजर्ट में आप देख रहे हैं कि ये क्या है? हम्प है ना, और इसके हम दो हैं, इसके हम्प एक हैं। इसके जो लेग्स है ये कितने पतले और लंबे हैं, जबकि इसके लेग्स छोटे हैं, है ना। इसकी लंबाई हाइट जो है वो बहुत कम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट में आप देखो यहाँ पे बहुत घने घने बाल हैं। ठीक है, क्यों है ऐसे? क्योंकि घने घने बाल रहेंगे तो ठंड कम लगेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं अब हम इनको पढ़ेंगे। सो द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स, लंबे पैर हैं, विथ वाइड हूफ्स, यहाँ जो सरफेस है ये हूफ्स ये वाइड है, चौड़ा है। एलेक्स शेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking in the ground. तो इनका लेग लंबा है, इनके जो हूफ्स है नीचे वो वाइड है, वो ऐसा इसलिए है ताकि जब सैंड में, डेजर्ट के सैंड में जब वो चले तब वो उसमें धंस ना जाए, सिंक ना कर जाए। ठीक है। On the other hand, the height and legs of camel of a cold desert are comparatively shorter. इसकी लंबाई जो आप लेंथ कहोगे या हाइट कहोगे ये कम है than those found in the hot desert. The short legs allow them to walk easily in mountainous regions. और ये छोटा इसलिए है ताकि mountainous regions में ये आसानी से चल सके। In deserts, food is not easily available. Deserts में खाना जो है वो आसानी से नहीं मिलता। Camels store food in their humps. तो कैमल्स के बॉडी में हम्प होता है और हम्प का काम क्या होता है? खाना को स्टोर करना।
Camels found in hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food. तो हॉट डेजर्ट में जो कैमल है इसके कितने हम्प हैं? एक, ठीक है। तो खाना को स्टोर करने में काम करेगा, जो कि जब खाने की स्कार्सिटी होगी, कमी होगी, तब यहाँ जो स्टोर किया हुआ खाना होगा दैट कैन बी यूजफुल। नाउ कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच। कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल है उसके हम्प कितने हैं? 2। These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. तो विंटर के समय वो यहाँ जो स्टोर रहता है खाना दैट दे यूज। मोर इसके अलावा दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। जो इनके बाल आप देख सकते हैं, हेयर्स हेड से लेकर के नेक पूरे तक कवर्ड है, दैट हेल्प्स देम प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड। सो व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? और क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कैमल्स को डेजर्ट में रहने के लिए हेल्प करें? सो अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट a small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। तो उनका यूरिन जो है वो बहुत कम निकलता है, उनका जो डंक होता है वो सूखा हुआ होता है एंड वो हमारी तरह पसीना नहीं निकलता। Why do you think all these things are happening? Because वहाँ पानी कम है और कैमल्स यह चाहेंगे कि पानी कम से कम खर्च हो, है ना। सो कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, वो अपने बॉडी से ज़्यादा पानी नहीं लूज करते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और इस वजह से वो बहुत दिनों तक बिना पानी के ही सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ माया टॉक्स अबाउट सीइंग, तो ये आपने 3rd एग्जाम्पल पढ़ लिया, ठीक है। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल्स हैं उनके बॉडीज में क्या अंतर है, उनके पैर कैसे हैं, उनके हम कितने हैं, उनके हेड से नेक के बीच में किन के लंबे बाल्स हैं, ठीक है, और जो वहाँ पे पानी वो और कम लूज करते हैं, ठीक है। अब हम 4th एग्जाम्पल पे आते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स, rhododendrons, in the Shola forest of Nilgiris. Here, rhododendrons are shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. However, Pema, who is from Sikkim is in the northeast region of India, so it is a state, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions. अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये है रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। अब जो नीलगिरीज है, तो नीलगिरीज में माउंटेनियस है, तो वहाँ पर छोटे हाइट का है और लीव्स भी छोटे हैं। वहीं सिक्किम जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पर वो लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट, सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स that he went to the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish helps them to swim in water. सागर कहाँ घूमने गया? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और वहां पर समुद्र है आसपास, ठीक है। उन समुद्र में उसने देखा कलरफुल फिश और बड़े बड़े वेल्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिश है उनकी बॉडी कुछ इस तरह से है ना, सामने की बॉडी जो होती है, फिर तो आपकी इस तरह से हो गई। तो ये जो आपकी जो बनावट है बॉडी का, है ना, दैट इज स्ट्रीमलाइन, इससे वो स्विम करने में आसानी होती है। नेक्स्ट,